سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جج ابوالحسناء ذوالقرنین اور پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے اٹک جیل کے حالات بارے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جج ہمایوں دلاور کا ایک بار پھر ذکر کیا گیا۔ پی ٹی آئی وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی دائر درخواست پر غلطی کا اعتراف کیا۔ پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ شیراز رانجھا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں، ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ فرزانہ، آگاہ کیجیے گا اس مکالمے کے حوالے سے مزید۔ جی بالکل، آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جج ابوالحسناء ذوالقرنین اور پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ جو ہے وہ سننے میں آیا ہے۔ جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے اٹک جیل کے حالات کے بارے میں وکلاء کو آگاہ کیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جج ہمایوں دلاور کا بھی ایک دفعہ پھر سے ذکر کیا گیا۔ اسی دوران پی ٹی آئی وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی دائر درخواست پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ پی ٹی آئی وکیل شیراز رانجھا کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر جج ابوالحسناء ذوالقرنین کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں ہے اور یہاں کا ماحول اٹک جیل سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 22 ملازمین کی گنجائش ہے، لیکن 7,000 قیدی رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ درجن مرغیوں کے ڈربے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے۔ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی، اڈیالہ جیل میں تو حالات ہی مختلف ہیں۔ مزید جج کی جانب سے کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں بہت رش ہے، اٹک جیل میں سکون تھا، جس پر وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے۔ عدالت بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی ہے لیکن نافذ نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹی وی بہتر بستر کیوں نہیں دیتے؟ اٹک جیل میں سکون تھا، جس پر جج نے کہا کہ میں نے اٹک جیل میں لائبریری، ورزش، اخبار کی سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی کو دی تھی۔ جیل منتقلی کا خواہ تماشا بنایا گیا، اڈیالہ جیل میں کوئی کہانی ہی نہیں ہے۔ یہ سارا مکالمہ ان کے درمیان دیکھنے میں آج نظر آیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فرزانہ۔ پاکستان نے احمد آباد میں دہشت گردی کے خدشے کے حوالے سے رپورٹس پر آئی سی سی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہنا ہے کہ میزبان ملک ہماری کرکٹ ٹیم کو عالمی کپ میں تحفظ فراہم کرے۔ سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو بھارتی ویزے نہ ملنے سے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی کپ میں پاکستانیوں کو ویزوں کے اجراء کے لیے بھارت سے رابطے میں ہیں۔ بطور میزبان بھارت پاکستانی شائقین کے عالمی کپ دیکھنے میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو عالمی کپ کرکٹ دیکھنے کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ بھارت سیاست کو کھیلوں کے ساتھ مکس نہ کرے۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست کے خلاف کیس، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل پرویز الہی لطیف کھوسہ نے بتایا کہ جھوٹے مقدمے بنا کر میرے موکل کو گرفتار کیا گیا۔ شاید اس ملک میں اب آئین نام کی کوئی چیز نہیں۔ گنڈوں نے آ کر پرویز الہی کو بوری کی طرح گاڑی میں ڈالا۔ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین کی گئی۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں؟ ایک بندے کو گرفتار کرنے سے روک دیا جائے اور وہ باہر 2 قتل کر دے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ججز نے بھی قانون کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ دن کو بغیر کپڑوں کے گنڈوں کی طرح پرویز الہی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ کیا مطلب ہے دن کو کپڑے پہنے بغیر لوگوں نے گرفتار کیا؟ جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس پر عدالت میں کہنے لگے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صرف 2 سوالوں کا جواب دے دیں۔ اس دن کا مقصد اساتذہ کو اعزاز دینے کا دن ہے۔ اس دن عالمی سطح پر اساتذہ کو درپیش مسائل کی نشاندہی اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے میٹنگز، کانفرنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس رپورٹ میں۔
यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को आलमी यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद यूनेस्को ILO की सिफारिश काम करना था। ये पेरिस में यूनेस्को की तरफ से बुलाई जाने वाली बैनुल हुकूमती कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से असातिज़ा की हैसियत को तस्लीम किया गया था। इस दिन पूरी दुनिया में असातिज़ा की कामयाबियों और कोशिशों को सराहा जाता है और उनकी हौसला अफजाई की जाती है। दुनिया भर की पॉलिसी साज और माहिरीन भी इस दिन को तदरीसी पेशे से मुतालिक मसाइल की निशानदही और इसके हल करने की जरूरत पर जोर देते हैं। इस दिन को मियारी असातिज़ा की अहमियत को उजागर करने और इस पेशे के मुस्तकबिल की ख्वाहिशमंद की रहनुमाई या हौसला अफजाई के तौर पर भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में तालीम सूबाई मामलात में शामिल है और बेशतर सूबाई हुकूमतें तालीम के लिए कई तरगीबात भी देती हैं, मगर मतलूबा नताइज नहीं मिलते। मियार तालीम है कि दिन पर दिन पस्त होता जा रहा है, जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। वर्ल्ड टीचर्स डे पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में अपने मादरे इल्मी क्रेसेंट मॉडल स्कूल का दौरा, असातिज़ा से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वो आज जिस मकाम पर है उसमें उनके असातिज़ा की तरबियत और मेहनत शामिल है। वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने अपने असातिज़ा से मुलाकात की, जिसकी खुशगवार यादें कभी फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि असातिज़ा कौम के मोहसिन और हमारा इफ्तिखार हैं। तालिब इल्म की शख्सियत साजी में वालिदैन और उस्ताद के किरदार को बराबर का दर्जा हासिल है। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी मुआशरे को परवान चढ़ाने में टीचर्स की कलीदी हैसियत होती है। उस्ताद अपने शागिर्दों में ला इल्मी के अंधेरों को मिटाकर इल्म का नूर बांटता है। कायमा कमेटी बराए खजाना में स्टेट बैंक की ब्रीफिंग को गलत पेश किया गया। स्टेट बैंक ने वजाहती बयान जारी किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक गलत तासुर दिया गया कि बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज़ायद की रकम महफूज नहीं। बैंक डिपॉजिट्स बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत मजबूत ज़वाबती और निगरानी के फ्रेमवर्क के मातहत पाकिस्तान में कायम बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। अशरफ खान हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अशरफ, बताइए। जी, यहाँ पे देखा जाए गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई थी जिसमें कायमा कमेटी ख़जाना में सवालात उठे थे कि बैंक अकाउंट में तकरीबन 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, उनके सार्फिन को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तो वहाँ पे जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक उन्होंने ब्रीफिंग दी कि यहाँ पे जो 5 लाख रुपए तक के जो डिपॉजिटर को सपोर्ट फराहम की गई इंश्योरेंस के ज़रिए, उसको गलत तासुर लिया गया। और मीडिया में जो खबरें और अखबारात में जो खबरें आई उसमें कहा गया कि जो 5 लाख रुपये से ज़ायद के बैंक में डिपॉजिट्स हैं वो महफूज नहीं है और जो बैंक डिपॉजिटर को खबरदार हो जाए। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत की है, जिसके मैं आपको दिखाऊं। क्लेरिफिकेशन में साफ कहा है कि जो यहाँ सरमाया है बैंक अकाउंट में महफूज है, और साथ में बताया कि एक इजाफी सपोर्ट जो है DPC जिसे कहते हैं डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के तहत तमाम जो 6 करोड़ बैंक अकाउंट है उनको सपोर्ट फराहम की गई है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम वो मिलेगा। और ये भी बताया कि अगर जो कोई भी डिपॉजिट जिसे 5 लाख रुपए से ज़ायद की यानी 50 लाख रुपए के डिपॉजिट्स हैं उसके, तो इनिशियली तौर पर उसको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के तहत दे दिए जाएंगे। और यहाँ ये भी ब्रीफिंग में बताया गया था कि मजमूई जो 6 करोड़ अकाउंट्स हैं उसमें 82% जो है 5 लाख रुपए से कम के उनके बैंक अकाउंट है, बाकी जो है 5 लाख रुपए से ज़ायद के। और यहाँ स्टेट बैंक ने जो वजाहत दी है, कहा है कि बैंक जो है तमाम बहुत ही मजबूत हैं, उनकी जो सरमायाकारी वो भी महफूज है। और ये भी बताया कि जो तमाम बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा भी महफूज है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में जो 32 बैंक हैं उनका जो मुनाफा है 125% का इजाफा हुआ है। और यहाँ जो इनिशियल तौर पर बताया गया है कि तमाम बैंक अकाउंट जैसे 6 करोड़ बैंक अकाउंट है उनके तमाम सार्फिन को इनिशियली तौर पर जो क्लेम है वो 5 लाख रुपए तक का जो उसका भी इजाफी प्रीमियम वो रखा गया है कि जो इंश्योरेंस के तहत वो क्लेम मिलेगा उनको। और खुदा ना खासा कोई बैंक जो अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी तमाम लिक्विडेशन के बाद ही फैसला किया जाएगा और जो तमाम रकम उनको फराहम की जाएगी। ये स्टेट बैंक इस बात की गारंटी देता है। और इस तरह की खबरों से जो अफवाहें फैलती हैं, तो मैं बताऊं आपको आज दिन भर जो है मुख्तलिफ ताजरों और सनतकारों के फ़ोन भी आए थे, वो भी ये तस्दीक करे। तो हमने स्टेट बैंक को भी लिखा था कि इस पर क्या वजाहत है, तो अब वजाहत आ गई और साफ कहा है कि तमाम बैंक्स में जो अकाउंट होल्डर की जो रकम है वो महफूज है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी खबरें नहीं उड़ानी चाहिए जिससे पैनिक सिचुएशन हो, जिससे यहाँ पे जो बैंक में डिपॉजिट में निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही मुल्क में जो सूरत हाल है उस पर जो सार्फिन है पहले ही परेशान है, ऐसी आधी खबरें आती हैं। तो फेडरेशन हाउस ने भी ये कहा है कि स्टेट बैंक ने बर वक्त आकर इसकी वजाहत की है, जो कि खुशाइंद है, लेकिन ये बर वक्त ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ की मालूमात और आगाही फराहम करते रहना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
सिंध निगरान वजीर सनअत व तजारत यूनुस ढाका का कहना है कि दुनिया में लोगों की कुव्वत खरीद में कमी के बायस टेक्सटाइल की डिमांड कम हुई है। रवां साल कपास की पैदावार अच्छी हुई है। उम्मीद है कि एक्सपोर्ट की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं अयाज राना। जी बिल्कुल, जहाँ हमारे पास जो एप्टेमा की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर हमारी टेक्सटाइल नीचे जा रही है। हमारे साथ यूनुस ढाका साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं सर टेक्सटाइल है उसको बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, वहीं टेक्सटाइल अब नीचे आ रही है। जो पिछले 9 माह के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल नीचे थी, उसको आप कैसा टेक्सटाइल की जो आपने बात की ना, इस वक्त इंटरनेशनली एक रिसेशन चल रहा है, इंटरनेशनली इस वक्त डिमांड कम हो रही है। तो हमारी जिन मंडियों में हमारा टेक्सटाइल जाती है, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे इस वक्त डिमांड नीचे जा रही है। अच्छी खबर ये है हमारे लिए कि हमारी इस वक्त कपास की पैदावार बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होगी, हमारी टेक्सटाइल को ज़्यादा रास्ता मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले महीनों में ये जो गैप आ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट जो नीचे थोड़ी बहुत गई हैं, ये इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। सेकेंडली, इस वक्त इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस भी आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से नीचे आ रही हैं। तो उम्मीद ये है कि ऑयल की प्राइसेस की तवक्को ये है कि जो अभी 100 से ऊपर जा चुकी थी, वो अब ये 70-80 पे आने की तवक्को इंटरनेशनल इस वक्त ये उसकी चल रही है प्रोजेक्शंस। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं रिलीफ इन्फ्लेशन में भी मिलेगा और महंगी बिजली में भी मिलेगा। जैसे कि यूनुस ढाका साहब का यही बताना था कि ये जो आने वाले दिन है उसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर एक अच्छा दिन आने वाले हैं और डॉलर की कीमतें और साथ साथ बिजली की कीमतों में भी कमी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह है। राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आज़म व सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है ट्रेडिंग कम्युनिटी से, जिसमें लाहौर और पंजाब की ताज़ा तंजीमों के अहदेदारान शरीक थे। इस मुलाकात में तफसीली जो तबादला ख्याल है, ना सिर्फ मुआशी सरगर्मियों पे बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो रियासत पर जो है वो सियासत पर रियासत को तरजीह दी है और आइंदा भी यही जो सूरत हाल है बरकरार रहेगी। ताहम ताजर कम्युनिटी की जानिब से भरपूर जो मसाइल थे ताजर रहनुमाओं को, उनसे भी शहबाज शरीफ को आगाह किया गया। ताजरों ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। ताजरों ने शहबाज शरीफ की मिसाक़ी मैशत की तजवीज़ की भरपूर हमायत और तायद की है। ताजर रहनुमाओं का इस मौका पर यह कहना था कि ताजर बरदरी दिलो जान से मियां नवाज शरीफ को इस्तकबाल करेगी। ताजरों के साथ मियां नवाज शरीफ का दिल का रिश्ता है। मियां नवाज शरीफ ने ताजरों के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। ताजर कभी भी आपका और मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ सकते। 2018 से 2022 के 4 साल बड़े सब्र आजमा थे, मुआशी जुल्म का शिकार हुए। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है और पाकिस्तान की मैशत जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राउत शाह। पाकिस्तान में मुकीम और गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन में तेजी आई है। इस्लामाबाद CDA और ज़िला इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। मागला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत भी CDA को हासिल थी। अफगान शहरी गांव मोहरिया मोटी में अरसा दराज से काबिज थे, जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन में तेज़ी आई है। इस्लामाबाद CDA और ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। मागला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी है।